حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے علماء و مشائخ کی DGP سے ملاقات۔ پرانا پل چلہ پر حملے کی شدید مذمت، امن و ہم آہنگی کے لیے فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا ڈاس میں عالمی سرمایہ کاروں سے اجلاس۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر، گوگل، یونیلیور اور دیگر کمپنیوں نے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ SIT پوچھ تاچھ کے بعد تلنگانہ بھون پہنچے ہریش راؤ کا ریونت ریڈی پر حملہ، پولیس کے ذریعے نوٹس بھیجنا بزدلی۔ فون ٹیپنگ جانچ محض انتخابی ڈرامہ، تلنگانہ جاگرتی صدر کویتا کی کانگریس و BRS پر تنقید۔ BRS سے کیا سوال، پسماندہ طبقات کے حقوق پر خاموش کیوں؟ حیدرآباد کی ظفر روڈ اب دوبارہ کہلائے گی نواب بہادر شاہ روڈ۔ سڑک پر نواب بہادر شاہ روڈ کا بورڈ نصب، مقامی عوام نے تاریخی نام کی واپسی کو قرار دیا خوشامد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں آج علماء اکرام و مشائخ کے ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی سے ملاقات کی اور پرانے پل دروازے پر 15 جنوری کو چلہ حضرت محبوب سبحانی اور دیگر مزارات پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی۔ وفد نے کہا کہ اس طرح کے واقعات شہر کے اہم ہم آہنگی اور امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے قاتلوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے۔ علماء و مشائخ نے تمام عبادت گاہوں، خاص طور پر 400 سالہ درگاہ حضرت موسیٰ قادری کے تحفظ کی بھی اپیل کی اور بین المذاہب ہم آہنگی، امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ وفد نے ریاست کی قیادت پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور سماجی اتحاد کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں۔ وفد میں مولانا سید محمود پاشا قادری، مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری بخار پاشا، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا، مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی علی پاشا، مولانا سید سیف اللہ حسینی قادری الباقری سیف پاشا، مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا محمد فرید الدین زاہد، مولانا محمد محی الدین احمد حسامی، مولانا سید واصف عالم قادری الموسوی اور دوسرے شامل تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ڈاس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے پہلے دن سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور دیگر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کی اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 اور بھارت فیوچر سٹی کے منصوبوں سے آگاہ کرتے ہوئے 30,000 ایکڑ پر محیط اس سٹی میں انفراسٹرکچر، زراعت، اسٹارٹ اپس، لائف سائنسز، ہیلتھ ٹیک، IT، سائبر سیکیورٹی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع اجاگر کیے۔ اسرائیل کی انوویشن اتھارٹی، UAE کے وزیر فائنانس و ٹورزم، سعودی عرب کی انڈسٹریل کانگلومیریٹ ایکسپرٹیز کمپنی، گوگل، رائل فلپس اور یونیلیور جیسی کمپنیوں نے اسٹارٹ اپس، اسکل یونیورسٹی، نالج ہب، میڈیکل ٹورزم اور گلوبل کیپابلٹی سینٹر کے قیام میں تعاون کا یقین دلایا۔ اجلاس میں تلنگانہ میں ٹریفک کنٹرول، ماحولیات اور عوامی سہولتوں کی بہتری کے لیے IT اوور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ عالمی سرمایہ کاری اور اختراع کے فروغ کے لیے متعدد ٹاسک فورس کی تشکیل پر غور کیا گیا، جس سے تلنگانہ کو مکمل اور عالمی سطح پر سرمایہ کاری اور اختراعی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کی سمت ایک مضبوط پیش رفت ہوئی۔
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 डॉस में तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत डी श्रीधर बाबू ने आलमी सरमाकारी को तेलंगाना में सरमाकारी की दावत दी और इसके तवील मुद्दती विजन तेलंगाना राइजिंग में शिरकतदारी का मौका पेश किया। इजलास के दौरान फ्रांस की कंपनी लॉरियल ने ऐलान किया कि जब वो हैदराबाद में अपनी पहली ब्यूटी टेक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करेगी, जो नवंबर 2026 में इफ्तिताह होगा और आलमी सतह पर कंपनी की जिद्दत, टेक्नोलॉजी, डेटा, AI तजुर्बात से सप्लाई चेन के लिए मरकज के तौर पर काम करेगी। वजीर ने बताया कि तेलंगाना की मैशियत को 2047 तक $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए जामा मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें लाइफ साइंसेस, AI, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एरोस्पेस, सब्ज तवन्नाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम शोबों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने लाइफ साइंसेस पॉलिसी 2.0 और तेलंगाना AI इन्वेंशन हब के आगाज का ऐलान किया और जोर दिया कि रियासत सनती तरक्की के लिए दोस्ताना माहौल और पॉलिसियों के जरिए आलमी सरमाकारों को फाल शिरकतदारी की दावत देती है। लॉरियल ने मजीद हैदराबाद में मुस्तकबिल की मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की, जबकि तेलंगाना की सरमाकारी की पॉलिसियों और स्टार्टअप, नॉलेज हब और स्किल डेवलपमेंट के मौके ने आलमी सनतकारों की तवज्जो हासिल की। Going into the defense and the aerospace sector. And the recent Telangana Rising event of us, led by our Chief Minister, Mr. Revanth Reddy, and we have projected to be a part and parcel of our Indian economy, which is projecting about 30 trillion economy by 2047, and the Telangana Rising 2047. We thought of contributing 10%, 30 trillion, and we have projected and we have started a dream of making of Telangana economy a 3 trillion economy. Over the past 2 years of us presenting ourselves in Davos, which provides the platforms for the investment to our state, we could be able to really rope in about 2.5 lakh crores over the past 2 years. And this time, specifically, we are here to project our policies. We are coming up with a global life sciences policy. We are coming up with a global AI policy. And over the past 2 years, we have come up with, MSME policy, which is supposed to be a niche policy, not only in India, to the global world too. And we have come up with a niche, a tourism policy, which are the key drivers for our state economy. And I wish and hope this time too, the state of Telangana will attract lots of investments. And also we would like to share our expertise to the global world. And we are here to present ourselves the best industrial and IT environment which we are trying to project on the global world. And I thank all the, officials from here who are all the time for contributing their mind, their energy to wish you a very, very new year, happy new year, because every new year we start with this. And I thank the friends from media for sharing our ideas to the global world. Thank you. Thank you. Thank you. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में होने वाली इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के मौके पर मेक्सिको की इंतखाबी वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सी सुदर्शन रेड्डी के हमरा इजाफी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वसान वेंकटेश्वर रेड्डी और डिप्टी कलेक्टरों चिन्नैया और प्रसन्ना भी मौजूद थे। मेक्सिको की जानिब से मार्सा एयरलाइन हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स यूनिट और नॉर्मा एरन डी इलेक्टोरल काउंसिलर वफद में शामिल थे। IICDEM 3 रोजा कॉन्फ्रेंस है जो आज 21 था 23 जनवरी तक एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनाकात की जा रही है, जिसमें रियासतों और मरकजी इलाकों के चीफ इलेक्शनल ऑफिसर्स की क़ियादत में 36 मौज़ूआती वर्किंग ग्रुप्स, भारत IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और IIMC के मुहक़क़ीन की शिरकत है और आलमी इंतखाबी इदारों के साथ 40 से ज़ायद 2 तरफ़ा इजलास शामिल हैं।
एसआईटी की जांच मुकम्मल होने के बाद तेलंगाना भवन पहुंचने वाले साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव का बीआरएस कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया, जहां उन्होंने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस के पीछे छुपकर नोटिस भेजना बुज़दिली है, अगर हिम्मत है तो सियासी तौर पर मुकाबला करके दिखाएं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने पुलिस और हुकूमती इदारों के जरिए नोटिस भेजकर उन्होंने इन्हें बदनाम करने की कोशिश की, मगर बीआरएस कारकुनान की हिम्मत और अवामी हिमायत इन्हें कभी शिकस्त नहीं देगी। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि रियासत में होने वाले घोटालों, करप्शन और गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ बीआरएस आवाज बुलंद रखेगी, चाहे कितने भी केसेस बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर कानूनी फोरम और अवामी सतह पर महाज खोलने के लिए तैयार हैं और रियासत के हर शहरी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस पार्टी की क़ियादत में साबिक़ा और मौजूदा कारकुनान ने हमेशा रियासती मुफादात के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी देंगे, और कोई भी सियासी दबाव या साजिश इन्हें अवामी खिदमत से नहीं रोक सकती। కార్యకర్తలం మేము, మాకు త్యాగాలు తెలుసు, మాకు పోరాటాలు తెలుసు. నీలాగా వెన్నుపోట్లు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు, చీకటి రాజకీయాలు మాకు తెలియవు. మా కేసీఆర్ నేర్పింది పోరాటం, త్యాగం, ప్రజల పక్షాన నిలబడడం మా కేసీఆర్ గారు నేర్పిండ్రు. నువ్వు ఎన్ని సిట్ నోటీసులు పంపుతో పంపు, మేము భయపడేది లేదు. కానీ నువ్వు దర్యాప్తు పేరు మీద ఆడుతున్నటువంటి ఈ నాటకం తెలంగాణ ప్రజలు నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు. నాకు తెలిసి ఇవాళ మళ్ళీ లీక్ ఇస్తారు, ఇట్లయిందట అట్లయిందట, లోపలనో ఓ చిల్లర లీక్ ఇస్తారు. దమ్ముంటే వీడియో బయట పెట్టు, మొత్తం వీడియో రికార్డింగ్ అయింది కదా. ఐ యామ్ ఛాలెంజింగ్ రేవంత్ రెడ్డి, ఇవాళ జరిగిన నన్ను అడిగిన ప్రశ్నలు, నేను చెప్పిన సమాధానాలు మొత్తం వీడియో బయట పెట్టి రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తారు. చిల్లర లీకులు ఎందుకు ఇస్తావు? మళ్ళీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు సాయంత్రం లీక్ ఇస్తారు. లీకుల ప్రభుత్వం ఇది, లీకుల ప్రభుత్వం, స్కామ్ల ప్రభుత్వం. లీకుల మీదనే ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఎంతకాలం నడుపుతావు లీకులను? ఈ లీకులు, ఈ చిల్లర రాజకీయాలు, ఈ బురద రాజకీయాలు నడవయి. ప్రజలకు డెలివరీ కావాలి, ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి. అరే నాట్లు పడుతున్నాయి, ఇది వరకు రైతు బంధు ఇయ్యలే, రైతు బంధు ఎప్పుడు ఇస్తావో చెప్పు. నాట్లకు కేసీఆర్ పైసలు ఇస్తే నువ్వు ఓట్లకు పైసలు ఇస్తున్నావు. ఓ పంటకు ఇస్తున్నావు, ఓ పంటకు ఎగబెడుతున్నావు. ఓ పంటకు బోనస్ ఎగ్గొట్టినావు, 2 పంటలకు రైతు బంధు ఎగ్గొట్టినావు, సగం మందికి రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టినావు, పంటల బీమా ఉత్తదే చేసినావు. అంతా 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉత్తదే అయిపోయింది. మహాలక్ష్మి 2500 పత్తా లేదు. 4000 పింఛను ఇవాళ ముసలోళ్ళు కళ్ళల్లో వత్తులు వేసుకొని అవ్వాతాతలు ఎదురు చూస్తున్నారు. వాటి గురించి మాట్లాడు. ఈ నోటీసులు మమ్మల్ని భయపెట్టలేవు సరికదా, మీ పతనాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకో రేవంత్ రెడ్డి. ఇలాంటి నోటీసులతో మేము భయపడం. నీ రాజకీయ పతనం మరింత పేక మేడల్లాగా కూలిపోయే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి. నీ పతనానికి నువ్వే నాంది పలుకుతున్నావు, నీ పతనానికి నువ్వే అడుగులు వేస్తూ ఉన్నావు. ఈ నోటీసులు నీ పతనాన్ని వేగవంతం చేస్తాయి, చూసుకుందాం. బట్ మేము ఫైనల్గా మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, నీకు నిజాయితీ ఉంటే, తప్పు చేయకపోతే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ల పేరిట సింగరేణిలో జరిగిన కుంభకోణాల మీద సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలని మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నువ్వు విచారణ ఒప్పుకోలేదంటే, నువ్వు విచారణకు ముందుకు రాలేదంటే నీ బావమరిది కుంభకోణం చేసింది నిజం, కుంభకోణం జరిగింది నిజం. అందుకే నువ్వు భయపడి విచారణ జరుపుతలేవని మేము భావించాల్సి ఉంటుంది. నిజాయితీ ఉంటే, ధైర్యం ఉంటే వెంటనే సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరుపు. లేదంటే మా అంటే 2 ఏళ్ళే కదా, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చేది ఖాయం, విచారణ జరిపేది ఖాయం, మీ అవినీతిని కక్కిచ్చేది ఖాయం, కటకటాల వెనుక మిమ్మల్ని పెట్టేది ఖాయం. तेलंगाना तहरीक के सरगर्म रहनुमा और साबिक वजीर एम सत्यानारायण की यौम पैदाइश के मौके पर बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस और बीआरएस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि फोन टैपिंग जांच एक मुनज़्ज़म ड्रामा है, जिसका मकसद बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के 42% रिजर्वेशन के मुतालबे से तवज्जो हटाना है। उन्होंने बीसी दानिश्वरों से अपील की कि वो इस कोशिश में जागृति के साथ शामिल हों। तेलंगाना जागृति के सदर ने यह सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस पार्टी
बैकवर्ड क्लासेस को 42% रिजर्वेशन दिए बगैर इंतखाबात में जा रही है तो बीआरएस पार्टी खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। कविता ने इल्जाम आयद किया कि पसमानदा तबकात को सवाल उठाने से रोकने के लिए जानबूझकर फोन टैपिंग का मामला सामने लाया जा रहा है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस जांच से कुछ हासिल नहीं होगा और शहरी इलाकों में होने वाले बल्दी इंतखाबात के पेश नजर अवाम को गुमराह करने के लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। कविता ने कहा कि सत्यनारायण ने पसमानदा और कमजोर तबकात के हुकूक के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की, मगर साबिका हुकूमतों ने इसे जहदकारों को नजरअंदाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि एम सत्यनारायण का मुजस्सिमा टैंक बैंड पर नस्ब किया जाए और वाज़े किया कि तेलंगाना जागृति इख्तिदार में आने पर तेलंगाना तहरीक के शहदा और कायदीन की जयंती व बरसी सरकारी सतह पर मनाई जाए, जबकि पसमानदा तबकात को इनका जायज हक दिलाने के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ఇయాల మున్సిపల్ ఎన్నికలు వచ్చినాయి, మళ్ళీ మున్సిపల్ ఎన్నికలలో 42% మాట ఎత్తకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది. ఆ ముందుకు పోయేటటువంటి సందర్భంలోనే మరి బీసీలు ఎక్కడ తెలుసుకుంటారో, మరి సంస్థలు, చాలా సంస్థలు, వ్యక్తులు ఎక్కడైతే గలమెత్తుతారో అనేటటువంటి ఆలోచన రాగానే ఏం చేస్తారు, గుంపు మేస్త్రి గారు గుంటనక్క గారిని ట్యాపింగ్ కేసులో పిలుస్తారు. గుంపు మేస్త్రి గుంటనక్క ఇద్దరు కలిసే ఉన్నారు. మభ్యపెట్టేటటువంటి ప్రయత్నం ఇది తెలంగాణ సమాజాన్ని. రేపు పొద్దున మీరు నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు మున్సిపాలిటీస్ కోసం, మా బీసీలంతా ఏకమవుతారు, ఏమైంది మా 42% అడుగుతారని చెప్పి కొత్త డ్రామా మొదలుపెట్టిరు తప్పితే ఇది ప్రజలకు వనికొచ్చేటటువంటిది కాదు. వాళ్ళిద్దరు కూడా కలిసే ఉన్నారు. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్కడ అడిగిందో ఒక్కసారి ప్రజలు గుర్తు చేసుకోవాలి. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎట్లా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లకు పోతారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమాలు చేస్తున్నదా ఇవాళ బీసీ బిడ్డలు గమనించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన చేస్తున్నదా ఇవాళ బీసీ బిడ్డలు గమనించాలి. మరి ఖచ్చితంగా 42% ఇవ్వకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు వెళ్ళడం అంటే బీసీలను మోసం చేయడమే అని జాగృతి భావిస్తా ఉన్నది. सिकंदराबाद जोन के तहत जीएचएमसी की नई सर्कल दफ्तर कवाड़ीगुड़ा और मुशीराबाद का बुध के रोज इफ्तिताह कर दिया गया है। इन दफातर की तामीर पर 10.50 करोड़ रुपए लागत आई है। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये दफातर इंतजामी मराकजियत को कम करने और शहरियों के लिए शहरी खिदमात को ज्यादा आसान और काबिल रसाई बनाने के लिए तामीर किए गए हैं। इफ्तिताई तकरीब में मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, एमएलए मोठा गोपाल, जीएचएमसी कमिश्नर आर.बी. करनान और दीगर सीनियर अफसरान व सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की और शहरी खिदमात को बेहतरी के लिए अज़्म का इजहार किया। ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి జరగాలని తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్నటువంటి అంతా కూడా ఒక గొడుగు కిందకి తీసుకొచ్చి 12 జోనల్ కమిషనర్లను, అదేవిధంగా 60 డీసీలను నియమించుకొని మరి పరిపాలన కొనసాగించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నది. దాంతో పాటుగా అనుసంధానంగా పోలీస్ జోనల్ కమిషనర్లు కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రజలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉన్నాయనేటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నది. ఈ విధంగా రాబోయే కాలంలో జిహెచ్ఎంసీ సర్వీసెస్ నూతనంగా కలిసిన ప్రాంతాలు కావచ్చు, ఇప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాంతాలు కావచ్చు, ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకొని భవిష్యత్తు ప్రణాళిక చేసుకొని అభివృద్ధిని ఒక మార్గదర్శకత్వం చేసుకొని ముందుకు పోవాలనేటువంటి, ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధాని, ఇక్కడ 2047 విజయంతో ముందుకు పోయేటప్పుడు దానికి అనుగుణంగా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలిగజేసేటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వంకు ఉంది. అది ఇండస్ట్రీ వారు వచ్చినా, ఐటీ రంగం వచ్చినా, టూరిజం రంగం వచ్చినా, మెడికల్ టూరిజం వచ్చినా, ఏ అంశం వచ్చినా రేపు ఇక్కడ గ్రీనరీ, పొల్యూషన్ ఢిల్లీ లాగా కాకుండా ఉండాలన్నా ఈ చర్యలని తీసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇవన్నీ ముందస్తుగానే ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ప్రణాళిక ప్రకారంగా ముందుకు పోయే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. వాళ్ళ టైం ఉంది. आरमूर निजामाबाद जिले इंचार्ज वजीर सीतक्का ने आरमूर में तरक्याती कामों के संग बुनियाद की तकरीब में हिस्सा लेते हुए एमएलए पी राकेश रेड्डी के हमरा बुनियाद रखी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर सीतक्का ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मरकजी और रियासती हुकूमतों की बाहमी कोशिशों से देहात और शहरों की हमाजहत तरक्की की बुनियाद रखी जा रही है। वजीर ने मजीद कहा कि अगर मरकजी हुकूमत 100 दिनों के प्रोग्राम में ताउन करे तो देहात और शहर तरक्की की राह पर तेजी से गामजन हो सकते हैं।
मेडारम यात्रा के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं और गोदावरी के किनारे भद्राचलम तक मंदिरों को जोड़ने के लिए सड़क सहूलतें मुहैया की जाएंगी। वजीर सीताका ने वाज़ेह किया कि रियासत में तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाने और अवामी फलाह को अव्वलिन तरजीह देने के लिए हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। రాబోతుంది పుష్కరాలు రాబోతున్నాయి। ఈ సందర్భంగా ఈ పుష్కరాలకు కూడా అత్యధికంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది। గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం ముఖ్యంగా బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు కూడా మరి ఈ జాతర అనంతరం నెక్స్ట్ గోదావరి పుష్కరాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెడతా ఉంది। రాబోయే కాలంలో అత్యధికంగా మన ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి కూడా నిధులు వచ్చి ఈ ప్రాంత ప్రజల రోడ్లు కానీ పురాతన దేవాలయాలు కానీ భక్తి విశ్వాసాలన్నీ కూడా కాపాడే విధంగా అభివృద్ధిని చేపడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు। हैदराबाद के मलकाजगिरी हल्के विनायक नगर में किग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की हिफाजत के लिए रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें मर्री राजशेखर रेड्डी, निरडमेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर साई अविनाश, किग वर्कर्स के रियासती सदर अनिता मोनी, नगेश कुमार समेत दिगर रहनुमाओं ने शिरकत की। सेमिनार में डिलीवरी बॉयज, ऑटो DCM और टैक्सी ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और इन्हें बताया गया कि हिफाजती इक़दामात जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल, शराब के असर में गाड़ी ना चलाना, रफ्तार में एहतियात और मोबाइल फ़ोन से ड्राइविंग ना करने की ज़रूरी है। मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा कि ड्राइवर और डिलीवरी बॉय सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि इस पूरे ख़ानदान का सहारा होते हैं, इसलिए इन्हें इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। SI अविनाश ने पुलिस की हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी से हादसात में नुमाया कमी मुमकिन है। सेमिनार का मकसद रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही बढ़ाना और वर्करों की हिफाजत को यकीनी बनाना था। हैदराबाद में ख्वाजागुड़ा झील के कब्जों और माहौलियाती मसाइल के हवाले से हाइड्रा ने सख्त इक़दामात का आगाज कर दिया है। कमिश्नर AB रंगनाथ ने अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर झील का मौकूफ़ी सतह पर तफसीली मायना किया, जिसमें झील के थोमोल और अलगोल बंद करने, पानी को गैर कानूनी तौर पर डाइवर्ट करने और झील के नीचे मौजूद छोटे झीलों की सरहदों में तब्दीली करने के इक़दामात की तस्दीक हुई है। इसके अलावा कमिश्नर ने नोट किया कि FTL के दायरे में कुछ अफराद ने गैर कानूनी कब्जा करके शेड्स तामीर कर लिए हैं और झील के आबी रास्तों को रोककर पानी की काररवानी मुतासर की गई है। हाइड्रा ने मुतल्लिका ज़मीनों के कानूनी दस्तावेज़ात की जांच करने और गैर कानूनी कब्जे ख़त्म करने का फैसला किया, ताकि झील की असल हुदूद बहाल हों और माहौलियाती तवाज़ुन कायम रहे। कमिश्नर ने जोर दिया कि ख्वाजागुड़ा झील की सफाई, पानी के मेयार की हिफाजत और सीवरेज आलूदगी को बरकरार रखने के लिए फौरी और मुस्तकिल इक़दामात किए जाएं, ताकि शहरियों को साफ पीने का पानी फराहम हो और यकीनी बनाया जाए और झील की माहौलियाती अहमियत महफूज रहे। तेलंगाना में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुध के रोज हरमगोंडा के एडिशनल कलेक्टर वेंकटा रेड्डी के खिलाफ गैर मुतनासिब आसासों के इल्जामात के तहत बड़े पैमाने पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान हैदराबाद, नलगुंडा, मिर्यालगुड़ा और मंचिरोला समेत दिगर मुकामात पर तलाशी दी गई, जिसमें नकद रकम, सोना और अहम जायदादी दस्तावेजात जब्त किए गए। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 30 लाख रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेजात बरामद हुई। वाज़ेह है कि दिसंबर 2025 में वेंकटा रेड्डी को मुबैना तौर पर 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। ACB के मुताबिक ये तहकीकात जारी हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया जब्त शुदा आसा से इनकी मालूम आमदनी के मुताबिक हैं या गैर मुतनासिब है। छापे हैदराबाद, रंगारेड्डी और वरंगल समेत कुल 10 मुकामात पर बेक वक्त अंजाम दिए गए और ये इत्तलात हैं कि वेंकटा रेड्डी ने गुज़िश्ता बरस प्राइवेट स्कूल की इजाज़त के लिए भी मुबैना तौर पर रिश्वत ली थी। हैदराबाद में अगले हफ्ते से मौसम गर्मा की इब्तदाई अलामात दिखाई देने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्के है। माहिर मौसमियात टी बालाजी के मुताबिक शहर में सिर्फ 14 दिन बाकी हैं और जनवरी के आखिर तक दिन के दर्जे हरारत 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। रात के दर्जे हरारत अगले 4 से 5 दिन 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा।
इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.5 और 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो खैरताबाद में नोट किया गया है। अगरचे बालाजी ने मौसम गर्मा की इब्तिदाई अलामात की पेशगोई की है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कोई बाकायदा पेशगोई नहीं की है। IMD के मुताबिक 24 जनवरी तक हैदराबाद में सुबह या रात के औकात में धुंध की हालत रहने का इम्कान है। शहर के रिहायशियों को दर्जे हरारत में मुमकिना इजाफे के पेश नजर तैयार रहने की जरूरत है। हैदराबाद के कदीम इलाके याकुतपुरा में वाक़े जफर रोड, जो अवाम में सदियों से इसी नाम से मशहूर है, दोबारा नवाब बहादुर शाह रोड के नाम से मौसूम कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक ये सड़क 1986 में तामीर हुई थी और उस वक्त इसका बाज़ाब्त नाम नवाब बहादुर शाह जफर रखा गया था। तहाँ मुकामी लोगों ने हमेशा इसे महज जफर रोड के नाम से जाना। गुज़िश्ता शब मुकामी अवाम ने सड़क पर नवाब बहादुर शाह रोड का बोर्ड नस्ब किया, जिसे मुकामी लोगों ने खुश आइंद इक़दाम करार दिया। बड़ा बाजार याकुतपुरा के रिहायशियों ने इस फैसले को तारीखी विरसे की बहाली के तौर पर सराहा। इस इक़दाम के बाद मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क के असल तारीखी नाम की वापसी इलाके की शनाख्त और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम कदम है। सत्या SHO फलकनुमा ने अपनी क्राइम टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल से 20 मोबाइल फोन्स बाजियाब किए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 3.5 लाख रुपये है। बाजियाब शुदा फोन्स को इनके जायज मालिकान के हवाले कर दिया गया। SHO ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर पर आज अले सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जब एक कार डिवाइडर के कंट्रोल खो जाने के बायस उलट गई और फ्लाईओवर के दरमियान नस्ब रेलवे सिग्नल डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हादसे की वजह से फ्लाईओवर पर शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस और मुकामी अहलकार पहुंच गए। उल्टी हुई कार को हटाकर ट्रैफिक रवां कर दिया गया और फ्लाईओवर पर नज़्म व ज़ब्त कायम किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस ने रश ड्राइविंग का खदशा जाहिर किया है और वाक़े की मुकम्मल जांच शुरू कर दी है, ताकि हादसे की असल वजूहात मालूम की जा सके और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़ियात की रोकथाम मुमकिन हो। हैदराबाद के सिकंदराबाद के निरेडमेंट पुलिस स्टेशन हदूद में RK पुरम फ्लाईओवर के करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जब एक 2 पहिया गाड़ी अचानक फिसलकर आर्मी की गाड़ी के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में आर्मी स्कूल का 6 साला तालिब इल्म क्लास 1 मौके पर ही जाँ बहक हो गया। बच्चे की वालिदा भी शदीद जख्मी हो गई है और इन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतालिका मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहलकार हादसे की असल वजूहात जानने के लिए गाड़ियों की तफसीलात और गवाहों के बयान जमा कर रहे हैं, ताकि जिम्मेदार को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी मिनारिटी कायदीन ने BRS कायदीन के बयानात को एक अफवाह करार दिया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के संजय नगर में वाक़े मिनारिटी मैट्रिक गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल को लेकर सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। हालिया दिनों BRS कायदीन ने हॉस्टल का दौरा करते हुए हॉस्टल को रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए मुख्तस करने का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस अक़लियती कायदीन पर तनकीद की थी। आज इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब में कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए BRS कायदीन के बयानात को बेबुनियाद करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर कांग्रेस अक़लियती लीडर खिज़र पाशा, शेख कलीम, साबिक मिनारिटी सेल चेयरमैन सैयद अजीम टॉन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर व दीगर मौजूद थे। आप जो 2022 में बंद होने की वजह ये भी बताना चाह रहा हूँ मैं, बच्चों को फैसिलिटीज नहीं थी। सबसे बड़ा इशू बस ऑटो का था जब, तो उसकी वजह से आपको कई बार उनके पेरेंट्स आके आपको प्रिंसिपल के जरिए, आपके MLA साहब के जरिए कई बार रिक्वेस्ट करे, मगर आप एक बस भी उनको और एक ऑटो भी इंतजाम नहीं करे। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, आपकी BRS पार्टी टाउन के अंदर है और वो टाउन के बाहर है हॉस्टल, आप ये भी सोचना। और दूसरी बात, आप इल्ज़ाम लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी पे,
तो सरासर ये गलत है। इस पे हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट साहब और कंदिस यूनिवर्सिटी साहब खुद कलेक्टर साहब को बात करें, साहब ये मसला क्या है बोल के, तो उन्होंने साफ तौर पे बोले ये हॉस्टल माइनॉरिटी के लिए है। जो रिसेप्शन ऑफिस है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, थोड़ा रिपेयरिंग का, उसकी वजह से एक फ्लोर चंद दिनों के लिए वहां पे दिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर डेवलपमेंट पसंद नहीं है तो आप खामोश रहिए, मगर बेवजह इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। और एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ मीडिया के जरिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा वो बीआरएस में नहीं हुआ। आज आपके 10 साल की हुकूमत में राशन कार्ड मिलना मुश्किल है, आज लाखों राशन कार्ड दिए। और आपको ये भी मालूम इंदिरम्मा इल्लू दे रहे, इंदिरम्मा पथकम में कई स्कीम से बसें और करंट फ्री है। आप भी क्या करो, हमारा साथ दो, मगर आप इल्जाम मत लगाओ। आने वाला म्युनिसिपल इलेक्शन है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अवाम को गुमराह मत करो कि अभी इलेक्शन में कैसा भी डेफिनेट कांग्रेस है और इंशाल्लाह रहेगी। तो आपसे मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अदर टीम को सपोर्ट मत करो, गुमराह मत करो। आदिलाबाद शहर में बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियों के साथ ही सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। वार्ड नंबर 28 कोलीपुरा में अवाम ने साबिक काउंसलर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आइंदा इंतखाबात में तब्दीली का मुतालबा किया। मुकामी अवाम का कहना है कि नौजवान व मुतहरिक कांग्रेस लीडर शोएब मेमन गुज़िश्ता 3 बरसों से वार्ड के अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल हैं और नालियों व ड्रेनेज की सफाई, राशन कार्ड्स की फराहमी, सरकारी स्कीमात से मुस्तफ़ीन को फ़ायदा पहुँचाने और बुनियादी सहूलतों की दस्तयाबी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस क़यादत से पुरजोर मुतालबा किया है कि आइंदा बल्दी इंतखाबात में वार्ड नंबर 28 कोलीपुरा से शोएब मेमन को पार्टी टिकट दिया जाए और यकीन दहानी करवाई कि उम्मीदवार बनाए जाने की सूरत में वो मुत्तहिद होकर इन्हें कामयाब बनाएंगे। मुकामी अफराद के मुताबिक शोएब मेमन एक ऐसे लीडर हैं जो ज़मीनी सतह पर अवाम से जुड़े रहते हैं, बिला तफरी हर तबके के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। 28 से काउंसलर खड़ों के थे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करे, लेकिन हमारे गली के शोएब कोलीपुरा के हैं, उन्नत सब कर रहे हमारे लिए। उनके लिए टिकट दो, हम लोग सब जने जिता के लेके आते। कांग्रेस वालों से हमारी गुजारिश है, कुछ भी नहीं करिए वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 28 के लिए। जो आपके जो शोएब भैया जो है उन्होंने यहाँ के लिए काम करे से है, उनको टिकट दो, हम उनको जिताना चाह रहे हैं। कांग्रेस वालों की गुजारिश है कि शोएब भैया को टिकट दो। ఇప్పడాక పనులు తిని ఇప్పడాక తీయలే. ఇప్పుడు సోయా పని వచ్చి తీపిచ్చి నాలుగు తీపిచ్చి మున్సిపాలిటీ నుంచి చూడండి ఎట్లా కచరా తీపిచ్చిండు. లేకుంటే ఇక్కడ కచరా ఎవరు తీయాలి, ఇక్కడికి అక్కడ దాకా చూడండి, మొత్తం కచరా చూడండి మొత్తానికి. మొన్నటి దాకా మొత్తం ఇట్లా పోదామంటే గల్లీ దాతన దోమలు బీమలు ఇళ్ళల్లో పండగందుకు సవార్ బంగ్లా దాకా అక్కడ దాకా. కానీ ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు సోయా పని వచ్చి మొత్తం వాళ్ళని పిలిపించి మాత్రం మున్సిపాలిటీలను పిలిపించి కచరా తీపిచ్చిండు. సోయా పనులను చూడండి, సోయా పనులు వచ్చి చెప్పుడు అజలేదు, సోయా పనులు తీపిచ్చిండు. ఇప్పటిదాకా పల్లెసీని ఇంకా ఇక్కడికి రాలే, చెప్తే సుఖరాకులేడు. చూడండి కచరా పనులు. ఇంటింటికి సుఖ తిరిగి మాకు అన్ని సాయం చేసి ఇస్తున్నాడు పాప. ఏమన్నా అయినా కానీ దగ్గరుండి చేయిస్తున్నాడు, హాస్పిటల్లో చూపెడుతున్నాడు. సోయబ్ మీ డిమాండ్ ఏంటి? టికెట్ ఇవ్వాలి, మాకు మంచిగా చేసి ఇస్తాడు అన్ని. అతనికి కావాలా, మాకు సోయబ్ అన్న రావాలి. నల్లలు రావు, ఏమి రావు, వస్తాడు ఇట్లా వస్తాడు, చూస్తాడు, పోతాడు, అయిపోయి అంతే. మాకు అవసరం లేదు, మాకు సోయబ్ అన్న వస్తే మాకు అన్నీ కాంగ్రెస్ నుంచి మాకు టికెట్ రాని రాకపోని ఇండిపెండెంట్ అన్నా కానీ మేము నిలబెట్టి గెలిపిస్తాం. ఎందుకంటే మాకు అన్నీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి, నల్లలు అన్నిటికీ నాలీలు బీలీలు అన్నీ తీస్తున్నాడు, అన్నీ దగ్గరుండి చేపిస్తున్నాడు. నీళ్ళు లేకున్నా కానీ నీళ్ళు ట్యాంకర్ తెప్పిస్తున్నాడు, అన్నీ చేపిస్తున్నాడు. కాబట్టి మాకు సోయబ్ అన్న వచ్చిండు అనుకో మాకు అన్నీ సోలత ఉంటుంది. సో ఇది ఇస్తే కాంగ్రెస్ నుంచి వస్తే మంచిది, రాకున్నా కానీ ఇండిపెండెంట్ నుంచి మేము గెలిపిస్తాం. मदरसा अरबिया दारुलूम रचना पेट जहीराबाद में 22 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब तकमीले हाफिज़ कुरान करीम और दस्तार बंदी हुफ़ाज़ कराम की अजीम सालाना आम इजलास का इनेकाद होगा। इस साल 13 हुफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी की जाएगी।
इजलास की सरबराही मौलाना अतीक अहमद कासमी करेंगे, जबकि सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती अकबर जाबर कासमी खिताब करेंगे। मदरसा अरबिया दारुल उलूम के सदर मौलाना शफी ने तमाम एतराब व अहल इल्म के लोगों से शिरकत की दरख्वास्त की है। इजलास के अख्तिताम पर शुरका के लिए ज़ियाफ़त का भी इंतजाम किया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल शाफ़ी नाज़िम मदरसा अरबिया दारुल उलूम ज़हीराबाद से अपील करता हूँ कि 22 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब एक अहम जलसा रखा गया है। इस मदरसे से 13 तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं और इसी इसना में जलसा रखा गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जलसे में ज़रूर व ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मुक़ामात मुक़द्दिसा की हिफाजत के लिए उलमा व मशाइख की DGP से मुलाकात। पुराना पुल चिल्ला पर हमले की शदीद मज़म्मत। अमन व हम आहंगी के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का डॉस में आलमी सरमायाकारों से इजलास। तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े उजागर। गूगल, यूनिलीवर और दीगर कंपनियों ने ताउन की यकीन दहानी करवाई। SIT पूछताछ के बाद तेलंगाना भवन पहुंचे हरीश राव का रेवंत रेड्डी पर हमला। पुलिस के जरिए नोटिस भेजना बुज़दिली। फोन टैपिंग जांच महज इंतखाबी ड्रामा। तेलंगाना जागृति सदर कविता की कांग्रेस व BRS पर तनकीद। BRS से किया सवाल, पसमानदा तबकात के हुकूक पर खामोश क्यों। हैदराबाद की जफर रोड अब दोबारा कहलाएगी नवाब बहादुर शाह रोड। सड़क पर नवाब बहादुर शाह रोड का बोर्ड नस्ब। मुकामी अवाम ने तारीखी नाम की वापसी को करार दिया खुशान। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।